Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Jaya Nityananda Ram, Nityananda Ram, Nityananda Ram, Jaya Nityananda. Jaya Nityananda Ram, Jaya Nityananda Ram, Nityananda Ram, Jaya Nityananda Ram, Gauranga 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 Gaura Hari Gauranga Gauranga Gaura Hari Gauranitai 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 Param Karuna Gauranitai Param Dayalu Gauranitai Nityananda 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 Ram Akroda Paramananda Nityananda Ram Abhimana Janya Jaya Nityananda Ram Parama Karuna Maya Nityananda Ram Nityananda Ram Nityananda Ram Nityananda Ram Jaya Nityananda Ram Gauranga Jam Gauranga Jam Gauranga Jam Jaya Gauranga Jam Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Sri Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Sri Jaya Vrindavan Ram Jaya Vrindavan Ram Vrindavan Ram Jaya Vrindavan Ram Navadipa Ram Jaya Navadipa Ram Navadipa Ram Jaya Navadipa Ram Jaya Hariva 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 Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Prabhupada 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 Nitai Gaura Hariva 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 Nitai Gaura Hariva 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 निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। इस भजन का ट्रांसलेशन पढ़ लेंगे ताकि धीरे धीरे उसमें प्रवेश करेंगे। तो पहली लाइन में लिखते हैं There is no one like Gauranga, no other incarnation in past, present or future preached such a rare form of prema. He never considered any offense, therefore he is even more merciful than Krishna. Gauranga bin nahi yaar. Second line. Anyone want to read? So please read. He did not slay the very wicked or the fallen atheists. Instead, he changed their mood, giving out the holy names. He went from door to door, purifying everyone's heart. Very good. Line number 3. Even Brahma and Shankara hankered for that divine love which Gauranga is pouring over the world. When the miserable and wretched people receive this prema, they begin to dance and clap their hands with joy, laughing and weeping. Laughing and weeping, their voices choked with love and their hair standing on end. Even the dog eaters and Brahmanas embrace one another, being freed from all material designations. When has such a drama ever been seen before? Dharma. 5. पांचवा लाइन कोई पढ़ेंगे? Playing loudly on mridanga and kartalas, Sri Chaitanya Mahaprabhu and his party roamed everywhere, chanting Krishna's names. Seeing the Sankirtan party, Yamraja, death
personified, became afraid and closed his doors. Very good. Last but not least, line number 6. All the three worlds became filled with bliss by the auspicious uproar of the Kirtan. Premanand Das laments bitterly, "Oh, that Gauranga is so merciful, yet Rati for him has not appeared in my heart." वेरी गुड. तो प्रेमानंद प्रभु जी वर लिखते हैं, हे मन गौरंग बिन नाही यार, इस जगत में गौरंग महाप्रभु से बढ़कर कोई अवतार नहीं हुआ, न होगा, क्योंकि स्वयं स्वयं भगवान श्री कृष्ण से भी दयालु सचिनंदन गौर हरि. किसी भी दुर्मति व्यक्ति को, किसी भी पाषंडी, किसी भी पतित जीव को उन्होंने मारा नहीं. हम जैसे पतित जीव, हम जैसे पाखंडी, हम जैसे पापी लोगों को तो कोई अधिकार ही नहीं भक्ति में प्रवेश पाने का. असंख्य जन्मों के पापों से हमारा गड़ा इतना भरा हुआ है कि हम भक्ति तो दूर की बात है, संसार में हम जी ही नहीं सकते. परंतु महाप्रभु की अहेतु कृपा से, नित्यानंद प्रभु की अहेतु कृपा से हमको भी जो ब्रह्मा जी को दुर्लभ प्रेम था उसको प्राप्त करने का मौका दिया. हरि नाम दिया हृदय शोधिला, याचे गया गरे गरे. सबको हरि नाम प्रदान किया. गोलो केरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन. ये हरि नाम कोई साधारण वस्तु नहीं है हमारे पास. हरि नाम चिंतामणि है. ये गोलोक वृंदावन धाम लेने का धन है. ये एक ऐसी नाव है जो भवसागर से पार करा करके सीधा भगवत धाम लेके जाएगी. सबके पास ये वस्तु नहीं है, सबको इसको पाने का अधिकार भी नहीं है. मगर महाप्रभु की ऐसी कृपा है कि हमारा हृदय भी शोध साफ कर दिया, हमको पात्रता भी प्रदान की, और पात्रता में ये अमृत रूपी हरिनाम भी प्रदान किया. वो भी हम नहीं गए, वही घर घर घूम घूम के फिरते फिरते हमारे घर पे आए. क्या हम लोग कभी गए मायापुर बंगाल ढूंढने के लिए कृष्ण प्रेम महाप्रभु के पास? नहीं. महाप्रभु ही हमारे घर आए. कैसे आए? गुरुदेव के द्वारा, वैष्णवों के द्वारा, गुरुदेव के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा. स्वयं महाप्रभु ही हमारे घर पे आए. हे प्रभु जी, हे माता जी, कल प्रोग्राम है आना मठ में, आपके घर में ही कल प्रोग्राम रखेंगे, हम ही आएंगे. अरे इतना दयालु कौन है? ये कौन है? स्वयं महाप्रभु है. मतलब प्रभुपाद जी का एक छोटा सा वीडियो देख रहा था. प्रभुपाद जी बोलते हैं, पीपल क्रेडिट, गिव मी क्रेडिट कि आपने इतना प्रचार किया. हु एम आई? व्हाट कैन आई डू? इट इज कृष्णा हु इज डूइंग दिस. स्वयं भगवान इसको कर रहे हैं. देखो, आई वाज इवन ऑब्जर्विंग. थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, ज्ञान हो जाता है, या थोड़ा भक्ति करने लगते हैं, हमको लगता है हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं. बट व्हेन आई वाज हियरिंग इवन 1 मिनट लेक्चर ऑफ प्रभुपाद, या छोटा सा जो वो रील था, भी कितना ह्यूमिलिटी, कितना कन्विक्शन कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ये स्वयं कृष्ण कर रहे हैं, ये गुरुदेव कर रहे हैं. प्रभुपाद अपने गुरुदेव भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद जी का नाम, ये वो कर रहे हैं, स्वयं कृष्ण कर रहे हैं. मैं तो बस निमित्त हूँ, मेरा तो कुछ है ही नहीं इसमें. द रियल ह्यूमिलिटी, द रियल फीलिंग कि मैं तो कुछ नहीं करने वाला. तो ऐसे ही महाभागवत हमारे घर पे आए. घर घर जाकर के महाप्रभु ने उनको भेजा. स्वयं महाप्रभु के ही वो प्रकाश है, और हम सबका हृदय शोधित करके हमको हरिनाम रूप प्रदान कर रहे हैं. इतना ही नहीं, भव विरंचर वंचित ज प्रेम जगते फिले डाली. जो पूरे संसार को जो प्रेम विरंचित है, जो इतना आसान से नहीं मिल सकता, जो सुदुर्लभा है, जो हमने सुना भी भक्ति का लक्षण, जो सुदुर्लभा कृष्ण प्रेम है, वो कृष्ण प्रेम भी सबको दे रहे हैं. कंगाले पाइया. कंगाल व्यक्ति मतलब जिसका ज्ञान बल नहीं है, जिसका भक्ति बल नहीं है, जिसका ज्ञान, जिसका बल, किसी के प्रकार का कोई बल नहीं, वो कंगाल है. कंगाल खाली पैसे से कंगाल नहीं, पैसे का कंगाल का कोई लेना देना नहीं. यहाँ पर कंगाल वो व्यक्ति है जिसके पास ना ज्ञान है, न ध्यान है, न भक्ति है, न कोई साधन है, इसलिए वो कंगाल है, वो खाली है. वो कंगाल को भी कृष्ण प्रेम प्रदान किया, और महाप्रसाद खे करते नाचते हुए, बस ताली बजाते हुए गौर हरि बोलो बस. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. बस इतना ही बोलो, सब कुछ प्रदान हो गया. हासिया कांदिया प्रेमे घड़ा घड़ी, व्यापुला पुलिकित व्यापुलंग, चंडाले ब्रह्मने करे कोला कुली, कबे वाचिला हीरा. कभी देखा था ऐसा समा कि एक कंगाल, एक ब्राह्मण, एक चंडाल
एक साथ बैठ के महाप्रसाद गा रहे हैं। हाँ, मुसलमान भी, क्रिश्चियन भी, हिंदू भी, सिख भी, सब प्रकार के, कोई जाति देव का वर्ग नहीं, सब एक ही जगह बैठ करके प्रसाद पा रहे हैं, एक ही पंडाल में, एक ही प्रसादम हॉल में। हाँ, और एक दूसरे को खिला रहे हैं, परोस रहे हैं। कैसा संभव हो सकता है? और हंसते हुए, गाते हुए, प्रेम में गदगद होते हुए महाप्रभु ने इस चीज सबको दिया। कहते डाकिया हाकिया खोर कलताले, घाई आ गया फिरे, देखिया शमन तरस पाइया, कपाट हनल द्वारे। यमराज ने अपना दरवाजा ही बंद कर दिया। दरवाजा कब बंद करते? जब कोई एंट्री नहीं, यहाँ पे किसी को आना ही नहीं, तो इसलिए दरवाजा क्यों खुला रखना है? इसलिए अपना दरवाजा ही बंद कर दिया कि भाई अभी कोई इस नरक लोक में नहीं आएगा, यमलोक में नहीं आएगा, सब भगवत धाम को चले जाएंगे। इसलिए केवल बोलो जोर से गोर हरि, करताल बजाते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, खाते पीते। कोई जंगल में जाके तपस्या करने की आवश्यकता नहीं, कोई पहाड़ पे जाकर के एक सर केवल खड़े होने की आवश्यकता नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल गाते नाचते हुए, महाप्रसाद ग्रहण करते हुए, नाम करते हुए, आनंद में कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। कहते हैं पर अंत में प्रेमानंद प्रभु जी लिखते हैं, यही तीन भवना आनंद डूबिला। पूरा तीनों भुवन, तीनों भूवर स्वाहा, तीनों लोग आनंद में, आनंद से भर गए महाप्रभु के इस प्रेम की ध्वनि सुन के, महासंकीर्तन सुनते हुए। परंतु है प्रेमानंदे हिमन गौरंगा रति न जन्मी। ऐसे परम दयालु सचिनंदन गौर हरि के चरणों में मेरी रति नहीं हुई, मेरी प्रीति नहीं हुई, हा हा मैं किस प्रकार का भागा हूँ। प्रेमानंद प्रभु तो परम दयालु है, वो तो भगवान के महाभागवत है। उनको तो किस प्रकार का कोई भी, उनको तो कोई भी किसी प्रकार का अभाव नहीं है। परंतु हम जीवों की अवस्था, मेरी अवस्था, वो बता रहे हैं कि भाई मुझे अभी तक भी महाप्रभु के चरणों में कोई प्रीति नहीं हुई, जब भी महाप्रभु के चरणों में कोई विश्वास नहीं है, नित्यानंद प्रभु के चरणों में कोई विश्वास नहीं है। अगर विश्वास होता तो मेरी आंखों से भी आंसू की जर्जर धारा बह रही होती अभी। अगर विश्वास होता तो गौर नित्यानंद नाम लेते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गौरंगा बोलिते होबे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते नयन बबे नीर। नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते, गौरंगा बोलते ही जो है हरि, ये जो पुलक है, जो रोंगटे हैं, खड़े हो जाते हैं। और हरि शब्द बोलते ही आंखों से अश्रु विसर्जन होता है। पर कहाँ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हृदय तो है ही नहीं। हृदय नहीं है, केवल एक पहाड़ रखा गया है मेरे अंदर, जिसको हृदय के नाम से मैं समझ रहा हूँ। इसलिए कोई कृपा, इसलिए इतने सारे जीव तो पार हो गए, पर मेरे इतने सारे असंख्य अपराध होंगे, अनर्थ होंगे, इन कारणों से मेरा कुछ कल्याण नहीं हो रहा। अगर विश्वास निताई गौर के चरणों में हो तो अवश्य ही वो कृपा प्रदान करेंगे, क्योंकि वो आई ही कृपा करने के लिए हम जैसे जीवों पर न तो हम उनको हृदय से पुकार रहे हैं, न तो हम आत्मनिवेदन कर रहे हैं कि हमको कृष्ण प्रेम प्रदान करो, अपना सानिध्य प्रदान करो, अपना दर्शन प्रदान करो। हम तो अभी संसार की वस्तुएं ही मांगने में लगे हुए हैं, हम तो भी संसार के ही पीछे घूम रहे हैं। तो इसलिए प्रेमानंद प्रभु हम सब जीवों के लिए भजन उदित करते हुए वर्णन कर रहे हैं, हम सबको महाप्रभु का चरणों का आश्रय लेकर के दृढ़ श्रद्धा के साथ उनके चरणों का पकड़ के उनका नाम, उनकी गुण, उनकी लीलाओं को निरंतर स्मरण, कीर्तन, श्रवण करते रहना है। यही हमारे जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है और इसी से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। तो इस भजन के बाद हम अपने टॉपिक पे आज प्रारंभ करेंगे। उससे पहले परम आराध्य गुरुदेव नितलीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिवजिकाचार्य वरष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद रूपानुग चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, इन सब के हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। एकत्रित भक्त वृंद, समस्त मातर वृंद, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी, हरे कृष्णा, अनुराधा दीदी, दंडवत प्रणाम प्रभु। श्री दीदी, दीप्तोषी दीदी, हिमानी दीदी, दंडवत प्रणाम। मानसी दीदी, मुकेश प्रभु, नीता दीदी, हरे कृष्णा, प्रवीणा दीदी, दंडवत प्रणाम। प्रतिभा दीदी, रेवती दीदी, सुभद्रा प्रभु, शीला दीदी, दंडवत प्रणाम। शिवानी दीदी, दीर कृष्ण प्रभु, श्रुति दीदी, दंडवत प्रणाम। श्री हरे कृष्णा, हरि हरि बोल। तो हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में 4 विभाग, हर विभाग में 4-4 लहरियां, टोटल 16 लहरियां। प्रथम लहरी
या प्रथम विभाग जिसका नाम है पूर्व लहरी। पूर्व लहरी में हमने सुना 4 विभाग है, 4 लहरियां हैं। कौन कौन सी है? सामान्य भक्ति, साधन भक्ति, प्रेमा भक्ति और भाव भक्ति। उसके बाद हमने प्रथम चैप्टर में ये भी सुना कि किस प्रकार से भक्ति का क्या डेफिनेशन है, सामान्य भक्ति क्या होती है और भक्ति के क्या लक्षण होते हैं। शुद्ध भक्ति किसको कहते हैं, उत्तम भक्ति किसको कहते हैं, उसकी डेफिनेशन सुनी। और फिर ब्रह्मांड ब्रह्मते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये जो भक्ति लता बीज हमको गुरुदेव की कृपा से मिला है, कृष्ण की कृपा से मिला है, हेतु कृपा से मिला है महाप्रभु की। ये भक्ति लता बीज का जब रोपण हृदय में होता है और जब ये फिर बढ़ता है एक पौधे के रूप में, पहले 2 पत्ते इसमें आते हैं, फिर और 2 पत्ते आते हैं, फिर और 2 पत्ते आते हैं, अर्थात 2 ही पत्ते नहीं आएंगे, समझो एग्जाम्पल देने के लिए। प्रथम 2 पत्ते जो है वो साधना भक्ति के 2 लक्षण है, अगले 2 पत्ते जो है वो प्रेमा भक्ति के, भाव भक्ति के लक्षण है, और अगले 2 जो पत्ते हैं, जो लास्ट के 2 पत्ते हैं, वो प्रेमा भक्ति के लक्षण है। फिर उनको एक्सप्लेन किया गया। पहले 2 पत्ते कौन है? क्लेश अग्नि, शुभदा। साधन भक्ति करते ही क्लेश अग्नि और शुभदा प्रारंभ होता है। भाव भक्ति में प्रवेश करते करते मोक्ष लघुता सुदुर्लभा, ये 2 पत्ते प्रकट होते हैं, अर्थात ये 2 सिम्टम हमारे जीव के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। और प्रेमा भक्ति प्राप्त करते ही कृष्ण आकर्षणी चशा सादर आनंद विशेषात्मा, कृष्ण को आकर्षण करने की शक्ति उस जीवात्मा में प्रकट हो जाती है। वो जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण को भी आकर्षित कर सकती है, ऐसी प्रेम भक्ति का लक्षण है। इतना ही नहीं, उसके अंदर आनंद घनीभूत होकर के प्रकट हो जाता है, क्योंकि स्वरूप शक्ति की आह्लादनी वृत्ति उसके हृदय में प्रकाशित भाव भक्ति के स्टेज में ही हो गई थी। फिर हमने इन दोनों जो पत्तों के हैं इनके प्रमाण सुने, प्रमाण के द्वारा विद प्रूफ विद एग्जाम्पल रूप गोसाई पाद ने इन सबको एक्सप्लेन किया। साथ ही साथ उन्होंने बताया कैसे साधन भक्ति प्रारंभ करते ही प्रारब्ध अप्रारब्ध कूट बीज ये सब समाप्त हो जाता है। जब साधन भक्ति प्रारंभ होती है तो दो पत्ते निकले थे, पहली थी क्लेश अग्नि। ये क्लेश अग्नि का अर्थ क्या है? क्लेश अग्नि में 3 चीजें हो रही है। क्या क्या हो रही है? कल भी बताया था। क्लेश अग्नि में 3 चीजें हो रही है। पहला क्या हो रहा है उसमें? क्लेश अग्नि में क्या होता है? अविद्या का नाश। क्लेश अग्नि में अविद्या का नाश होता है। अविद्या जो हमारे अंदर है, हम अपने आप स्वरूप को नहीं जानते हैं, उसका नाश होना प्रारंभ। तो इस प्रकार से साधन भक्ति के अंदर क्या क्या लक्षण है आगे हम सुनेंगे और डिटेल में। क्लेश अग्नि में क्या होता है? शुभदा में 4 लक्षण है, क्लेश अग्नि में 3 लक्षण है। क्या शुभदा के लक्षण है, क्या क्लेश अग्नि के लक्षण है, आगे सुनेंगे डिटेल में इस चैप्टर में। फिर हमने उस चैप्टर को वहीं पर विराम देते हुए अंतिम श्लोक पढ़ने के बाद दूसरा चैप्टर प्रारंभ किया, जिसका नाम है साधना भक्ति। कल भी हमने सुना साधन भक्ति का प्रथम श्लोक में बताया गया सबक्ति साधनम भाव प्रेमा च तदुर्पिता। ये जो भक्ति है जी, ये 3 स्टेजेस में आती है, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। जीव गोस्वामी पाद ने कहा साधन भक्ति और साध्य भक्ति के रूप में भक्ति होती है जी। एक साधन भक्ति है, एक साध्य भक्ति है। प्रभु गोस्वामी पाद ने कहा साधन भक्ति, प्रेमा भक्ति, भाव भक्ति। संक्षेप में चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने रिकंसाइल किया, बोला दोनों एक ही चीज बता रहे हैं। जो भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति है वो साध्य भक्ति का लक्ष्य का अंग है, और जो साधन भक्ति है वो तो साधन भक्ति का लक्ष्य दोनों ने बता दिया। साधन के द्वारा साध्य की प्राप्ति होती है, साधन के द्वारा साध्य की प्राप्ति होती है। इसलिए साधन को साध्य नहीं बोला जा सकता, इसलिए उन्होंने उनको 2 विभाग कर दिए। बात समझ आ रही कि नहीं? अगर नहीं आ रही तो मैंने यहाँ पर आपके लिए प्रेजेंटेशन भी बनाया थोड़ा सा समझने के लिए, ताकि समझ सके। साधन के द्वारा साध्य की प्राप्ति होती है, इसलिए साधन भक्ति और साध्य भक्ति एक नहीं है, 2 अलग वस्तुएं हैं। तो क्या दोनों में अंतर है? साधन और साध्य में क्या अंतर है?
क्या अंतर है, कोई बता सकता है? Sadhi means goal. वेरी Sadhan गुड, like process to achieve the goal. प्रोसेस रीचिंग द गोल। कौन बोले? श्रुति दीदी। जी मैं साधन तो मुझे सुनाई नहीं दिया। साधन तो प्रोसेस है, साधी वो जो आउटपुट है। साधन प्रोसेस है। अनुराधा दीदी बोल रही थी क्या, या हिमानी दीदी? नहीं प्रभु जी, मैं बोल रही थी। श्रेया, ओके, वेरी गुड, ठीक। साधन इज प्रोसेस, साध्य इज गोल। सो साधन से साध्य कैसे प्रकट होता है? साधन से साध्य कैसे प्रकट होता है? साधन से साध्य प्रकाशित हो रहा है। कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? अब साधन और साध्य में क्या अंतर है? क्यों इसको दो विभागों में डिवाइड किया? क्यों बताया ये साध्य है और ये साधन है? क्यों बताया? ईश्वानी दीदी, दीपश्री दीदी, मानी दीदी। प्रभु जी साधना जो होती है ना, उसमें संबंध स्थापित नहीं हो पाता है। वेरी गुड। भाववत, अच्छा वो तो नेक्स्ट स्टेप है। और मतलब इसीलिए साधना से फिर साध्य, मतलब प्रोसेस है तो फाइनली फिर हम साध्य पे पहुंचते हैं, जहाँ पे एक्चुअली हमें गोल समझ में आता है। व्हाट इज द गोल? भाव भक्ति, राधा दास से राधा दास। वेरी नाइस, राधा। ठीक। तो इसलिए दूसरे श्लोक में बताया, कृति साध्य भवेत साध्या भावस साधना विधा। साधन भक्ति का डेफिनेशन बता रहे हैं, कृत्य साध्य भवेत साध्य, साध्य भाव मतलब आपके कृत्य, आपके एक्शन से, आपके सेंसेस के एक्शंस के द्वारा जो चीज हम प्राप्त करते हैं उसको साधन भक्ति बोलेंगे। उत्तमा भक्ति हैज बीन प्रीवियसली एक्सप्लेन्ड व्हिच ट्रांसलेटेड इनटू प्रैक्टिस थ्रू ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। कृति साध्य भवेत, practice it through organs of body, that is senses, and which is being practiced brings the manifestation of भाव भक्ति। अब साधन भक्ति करने का लक्ष्य क्या है? क्या है साधन भक्ति करने का लक्ष्य? भाव भक्ति। भाव भक्ति। तो साधन भक्ति और भाव भक्ति में क्या अंतर है फिर? रिलेशनशिप एस्टैब्लिशमेंट, क्या हो रहा है? संबंध स्थापित हो जाता है प्रभु जी। बस मतलब एक ही चीज। अनर्थ खत्म हो जाते हैं, दर्शन होते हैं भगवान के। कहाँ पर होते हैं? भाव भक्ति में। भाव भक्ति में। तो साधन भक्ति के सिम्टम यहाँ पे बताया, कृति साध्य भव। पहला सिम्टम ये सेंसेस के द्वारा होती है। ये किनके द्वारा होती है? हमारे इंद्रियों के द्वारा। इंद्रियों के द्वारा प्रारंभ हुई, पर इंद्रियां तो हमारे साथ जाने वाली नहीं है। आत्मा तो स्वतंत्र है, वो तो मन बुद्धि अहंकार को भी छोड़ देगी। बिकॉज इट इज डन बाय साधन, बाय सेंसेस, सो इट इज कॉल्ड साधना। क्योंकि ये इंद्रियों के द्वारा होती है, ऑर्गन्स के द्वारा। पीछे हमने सुना कृति साध्य भवेत, ये सेंसेस के द्वारा होने के कारण इसको अलग बता दिया, ये साधना है भाई। यहाँ पर कोई संबंध नहीं है भगवान के साथ, क्योंकि हम तो अभी बस कर रहे हैं, हमारे तो बहुत सारे अनर्थ है। साधन भक्ति का लक्ष्य क्या है? भाव भक्ति तो होना चाहिए, पर जनरली लोग जो साधन भजन करते हैं उनका लक्ष्य क्या होता है? क्या होता है साधन भक्ति? अगर कोई बाहर आप किसी को पूछे, आप पूजा पाठ करते हैं, भजन साधन करते हैं, उनका लक्ष्य क्या होता है? संसार की भोग विलास की विधि। और अगर कोई आप बोलूंगा कोई शब्द तो बोलेंगे क्यों नाम ले रहे हैं ऐसे। अगर आप किसी मंदिर में जाएंगे, किसी अच्छे मंदिर में, वैष्णव मंदिर में, इवन उनको पूछेंगे आप साधन भजन क्यों कर रहे हैं, वो क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? तो अगर मैं पूछता हूँ, हाँ भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। मगर अगर मैं पूछूं, इसको पूछूं अनुराधा दीदी को, अनुराधा दीदी अगर हम किसी को पूछेंगे मंदिर में जो जाते हैं, मठ में आते हैं बहुत सारे लोग, वो साधन भजन क्यों करते हैं, वो साधना क्यों करते हैं? भगवान की प्राप्ति के लिए। भगवान की प्राप्ति के लिए करते हैं। और अगर मैं पूछूं, मानी दीदी भाग गई क्या आज?
मेरे प्रभु जी भी। हनुमान जी क्या बोलेंगे? आप उधर जाएंगे सेंटर में, आप ये साधन भजन क्यों कर रहे हो? क्योंकि भगवान खुश होंगे। भगवान खुश होंगे। क्या बोलो दीक्षा, क्या बोलो? जोर से बोलो दीक्षा। गलत जवाब तो शाम यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं, एग्जाम लास्ट में होगा। एग्जाम के लिए मैंने ऑलरेडी बात करी है, मैं पन्ना महाराज से डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे हम भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव ऐसे कोर्सेज होते हैं, वैसे ही वेरी सून इंटरनेशनल गौड़िया वेदांत ट्रस्ट के द्वारा भी हम लोग ऐसे कोर्सेज लॉन्च करेंगे। प्रॉपर आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मिलेगा। जो लोग एंड में एग्जाम पास करेंगे, जिनको एग्जाम पास करने की जरूरत है उनको कोई डर नहीं है। समझना है साधन साध्य में क्या अंतर है, ताकि हम उसको ठीक से कर पाएंगे, उनके लिए उतना ही है। हाँ, कोई सर्टिफिकेशन करना चाहे तो उसको लास्ट में एग्जाम होगा, प्रॉपर एग्जाम होगा, 2 या 3 बुक्स का प्रॉपर सर्टिफिकेशन मिलेगा। इंटरनेशनल गौड़िया वेदांती समिति के द्वारा प्रॉपर फ्रेम में आएगा, सर्टिफिकेट होगा, स्टैम्प्ड एंड साइंड बाय सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट ऑफ गौड़िया वेदांती समिति ट्रस्ट। अभी उसके ऊपर बात चल रही है, डिस्कशन बस मैंने शुरू किया है। मैं बोला कि बाकी संस्थाओं में भी ऐसा हो रहा है, उसमें ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन भी होगा। कोई ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहता है 2-3 महीने मठ में ही रह करके, मायापुर में या वृंदावन में या दिल्ली में या बेंगलोर में, wherever you can do a full-time course 2-3 months, or you can do an online course also for 6 months to 1 year। और उसके बाद एग्जाम होगा, वहां पर फिर क्वेश्चन आंसर का नंबर लगेंगे। अभी कुछ भी बोल सकते हैं, सही गलत कोई टेंशन नहीं, सही हो सकता, गलत हो सकता, उसमें कोई चिंता नहीं है, उसमें कोई एग्जाम कोई मार्क्स नहीं। बताओ दीक्षा, फटाफट। वैदिक भक्ति ज्यादातर दीक्षा बोल रही, वैदिक भक्ति करते हैं। तो ज्यादातर अगर किसी को बोलेंगे हाँ भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है जी, उससे भी भगवान की प्रसन्नता करने वाले बोलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। मगर अगर शिवानी दीदी को पूछेंगे किसी मठ में, किसी मंदिर में आप जाके पूछोगे तो क्या बोलेंगे लोग आपको? क्या करते हैं ज्यादातर लोग, किस लिए करते हैं? कुछ कामना के लिए, कुछ कामना शांति के लिए, कुछ कामनाओं के लिए करते हैं। मैं तो भक्तों की बात कामनाओं को कर रहा हूँ, जो पूर्ण ऑलरेडी करने के भक्ति लिए। मार्ग में आ गए हैं। संसारिक व्यक्तियों को छोड़ दो, वो क्यों लगाते हो? प्रभु जी अपने फेम वगैरह के लिए, या कुछ दिखाने के लिए भी कर सकते हैं, दिखाने के लिए करते हैं, या तो फिर पाप से बचने के लिए। पाप लगेगा, पाप लगेगा। मुझे अपनी चिंता है, मेरे को पाप लगेगा, पाप खाएंगे अगर ज्यादातर को लोग बिना पाप भोग से लगे। बचने के लिए ही भक्ति कर रहे हैं ज्यादातर लोग, बिकॉज दे डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग देयर इज सम संबंध। किसी ने अभी तक उनको बताया ही नहीं संबंध ज्ञान क्या है, किसी उनको पता ही नहीं साधन भक्ति और साध्य भक्ति में अंतर क्या, तो कैसे वो करेंगे साध्य भक्ति? कृति साध्य भवेद साध्य भावा स साधन विदा। अब जब हमने पहली बार पढ़ा कि साधन भक्ति का लक्ष्य भाव भक्ति होना चाहिए, तो हम लोग तो समझ सकते हैं, कर सकते हैं। जिसने पढ़ा नहीं वो कैसे समझेगा? वो तो बोलेगा पाप से बचना है, भगवान सर्वे सर्वा है, हमारे मालिक है, हम उनके नौकर है, हमको उनका कर्तव्य है पूजा करना, पाठ करना, बस यही है बस। Even I can tell you, in many devotees, if you ask who are in the system for a long time, they will give the same answer. I feel even if they say Krishna की प्रसन्नता, but in the core of heart is not Krishna की प्रसन्नता। क्योंकि एक बात ठूस गई हमारे दिमाग में कि हमारा जो भगवान के साथ वो बहुत बड़े हैं और हम बहुत छोटे हैं, हमारा बस यही कर्तव्य उनकी सेवा करना है। इसलिए यहाँ पर बताया गया, जो साधन भक्ति जब जीव प्रारंभ करता है तो वो इंद्रियों के द्वारा करता है, उसमें कोई संबंध ही नहीं होता है, और केवल उसका लक्ष्य होता है अपने अनर्थों को निवृत्त करना। वो अनर्थ निवृत्ति के लिए ज्यादा कार्य करता है, और करना भी चाहिए टू सम एक्सटेंट। जब तक वो इस स्तर पर नहीं आएगा, जब आपके हृदय में जिस दिन ये विश्वास हो जाएगा, अरे एक नाम में इतनी शक्ति है, तो क्या मेरे को बिगाड़ सकता है? मेरा कर्म, मेरा अनर्थ, मेरे पाप क्या बिगाड़ सकता है? एक नाम में इतनी शक्ति है कि वो कितना पाप कर ही नहीं सकता। और अभी विश्वास ही नहीं उतना नाम में भी, तो कैसे हमारा विश्वास, कैसे हम बोलेंगे जब विश्वास ही नहीं इस बात का? इसलिए अनर्थ है। अगर विश्वास आ गया तो अनर्थ उसी दिन कट जाएंगे, उसी समय अनर्थ कट जाएंगे, उसी समय संबंध कब इंसान जोड़ने का प्रयास करेगा भगवान के साथ? जब वो किसी डर से न भक्ति कर रहा हो, जब प्रीति थोड़ी उसके अंदर उत्पन्न होने वाली हो, तब जाके वो संबंध स्थापित करने का प्रयास करेगा। नहीं तो दक्षिणा देनी है, दान देना है, अरे नहीं तो गुरुजी डांट देंगे, अरे भगवान को तो हमको देना चाहिए, हमारा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, इट इज ड्यूटी। देयर इज डिफरेंस बिटवीन ड्यूटी एंड देयर इज डिफरेंस एंड लव। साधन भक्ति वैदिक मार्ग में ड्यूटी बन जाती है, ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है, इसलिए मुझे करना है।
और वही साधन भक्ति रागानुगा मार्ग में प्रीति के कारण, बिकॉज ऑफ लव इट स्टार्ट्स। क्योंकि साधन भक्ति में कोई ना कोई संबंध है, अनर्थ अभी तक कटे नहीं है, बहुत सारे अनर्थ है, दुष्कृति युक्त अनर्थ है, स्कृति युक्त अनर्थ है, अपराध युक्त अनर्थ है और भक्ति युक्त अनर्थ भी है। ये सारे अनर्थ चल रहे हैं साथ साथ, अनर्थों का ही पोषण ज्यादा हो रहा है। हाँ, हम लोग जब स्टार्टिंग में प्रचार आदि करते थे कॉलेज वाले में, तो जब हम बाहर जाते थे, लोग घरों से बाहर निकल करके आरती वारती थाली लेकर के आते थे, नारियल। अरे देखो ये लड़के, कॉलेज के लड़के कितने अच्छे हैं। गांव में कॉलेज था महाराष्ट्र, तो आते थे, भाई देखो 10 रुपया 5 रुपया नारियल, कोई केला, देखो हमको लगता है वाह हम तो बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया हो गया, हम तो बहुत बड़े महात्मा हो गए हैं, चलो चलो आज दूसरे मोहल्ले में जाते हैं। सूर्य मंगल आरती के बाद वहां पे वो पूरा रोड वोड धो के रखेंगे, अरे कल ये आएंगे यहाँ पर कीर्तन करने के लिए, अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया बात है। अनर्थों का पोषण हो रहा है कि किसका हो रहा पता नहीं। बाद में कई बार लगा रहे यही ठीक है। कुछ बात लोग बोले प्रभु जी क्या करना जॉब वॉब करके, मठ मंदिर बनाएंगे बढ़िया सा, बहुत अच्छा है, यही भगवान की भक्ति तो हो जाएगी। गोल वाज नॉट टू मेक मनी और मेक एनीथिंग, बट हाँ देयर वाज समथिंग इन द हार्ट। इसमें तो अच्छा है, मान सम्मान भी है, सब कुछ है। सो दिस इज अनर्थ व्हिच इज गेटिंग डेवलप्ड थ्रू भक्ति। संबंध तो कोई था नहीं, संबंध तो साइड में रह गया। मंदिर बनाना है 1 करोड़ का बनाना है, 25 करोड़ का, 40 करोड़ का, उसने 25 का बनाया तो मैं तो 50 का बनाऊंगा। उन्होंने, उनके मठ में 10 ब्रह्मचारी तो मेरे में तो 20 रहेंगे। तो दिस बिकम्स द गोल ऑफ भक्ति। अनर्थ ही वहां पर पोषित होंगे, भक्ति लता बीज जो है वो ढक जाता है। तो इसलिए कहा गया साधन भक्ति जो है वो तो एक्चुअली भक्ति अभी है ही नहीं, ये साधन कृत्य है। These are the activities of sadhana, not even साधन भक्ति। परंतु भाव भक्ति और साधन भक्ति में क्या अंतर है? अभी भाव भक्ति में संबंध ज्ञान हो गया है, संबंध ज्ञान हो गया है, पढ़ा था ना हमने माधुर्य कादम्बनी में। नाम रूप गुण लीला का सिमरन और स्फूर्ति हो रही है, और अनर्थ जो है वो प्रायः खत्म हो चुके हैं। और प्रेमा भक्ति और भाव भक्ति में क्या अंतर है? अब प्रेमा भक्ति और भाव भक्ति में क्या अंतर है बताओ, ये आपके लिए प्रश्न है, बताओ हेमानी दीदी। आजकल मैं हेमानी दीदी को ही पकड़ रहा हूँ क्योंकि ऊपर ही नाम आ रहा है, मैं जो नाम ऊपर है मैं उसी को पकड़ सकता हूँ। ठीक है, मानसी दीदी बताएंगे। मेरी आवाज तो आ रही ना कि नहीं? हाँ जी आ रही है। देखिए अनियंत्रण प्रेमा भक्ति में भगवान की लीलाओं में प्रवेश मिल जाता है। आवाज बहुत दूर से आ रही है। जी मैं बोल रहा हूँ प्रेमा भक्ति में भगवान की लीलाओं में प्रवेश मिल जाता है भक्त को। वेरी गुड। और कुछ? तीन लक्षण तीनों के बताए, तीन लक्षण तीनों में बताए, और वो तीनों लक्षण एक दूसरे को डिफरेंशिएट करने के लिए है। साधन भक्ति के 3 लक्षण है, भाव भक्ति के 3 लक्षण है, प्रेमा भक्ति के 3 लक्षण है, और एक दूसरे को तीनों डिफरेंशिएट करते हैं। साधन और भाव में तो बता दिया मैंने, भाव और प्रेम में आप बता दो। प्रभु जी भाव में आपको ज्ञान गुण लीला की वो होती है, अनर्थ आपके मिटते हैं पूर्ण रूप से। वो मतलब क्या होता है? वो मतलब क्या है? आपको भगवान और अपना रिलेशन, आपको संबंध का ज्ञान हो चुका होता है। संबंध ज्ञान हो गया, ठीक है, एक पॉइंट बोल दिया आपने, संबंध ज्ञान हो गया। अनर्थ खत्म हो गए, पर अनर्थ पूरे खत्म नहीं हुए, प्राय खत्म हुए। प्राय खत्म हुए, पूर्ण रूप से नहीं हुए। तीसरा लक्षण क्या है? और उनकी हमें जो जैसे उसमें था कि अंग वो था कि पहले आपके चरणों के दर्शन होते हैं। वेरी गुड, बता दिया। तो प्रेम, अपने भाव के लक्षण, प्रेम और भाव में अंतर क्या है वो बताना है। भाव प्रेम के लक्षण आपने बता दिए, बिल्कुल सही। और व्हाट डिफरेंस प्रेम एंड भाव? मतलब प्रेम तब उत्पन्न होता है जब हमारे सारे ही अनर्थ खत्म हो जाते हैं और हमारे को वो ज्ञान हो जाता है अपना और भगवान के बीच के संबंध का। तो भाव में भी हुआ था ना, तो भाव में बोला आपने ऑलरेडी संबंध ज्ञान हो गया, तो प्रेम में भी मतलब अब हमें मतलब कोई उसकी जरूरत नहीं है, ये सब चीजें हमें जो भगवान की भक्ति करनी है, कुछ कोई फोर्स नहीं है कि हमें कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करना, तो रुचि सब में हो गया अपने आप से ही पूर्ण
मतलब इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं हम। वो रुचि में हो गया था, वो तो बहुत पहले हो गया, रुचि, आसक्ति, भाव, फिर प्रेम हुआ। और रहा ना जाए कि हमें अभी दर्शन चाहिए ही चाहिए भगवान वो तो के। रुचि में था, वो भी रुचि में था हिमानी दीदी। प्रभु जी, प्रेम भक्ति में प्योर मतलब प्रेम है और कुछ नहीं है, जो भी हम कर रहे हैं वो भगवान के प्रेम के लिए कर रहे हैं। और भाव भक्ति में दर्शन हो गया वो सब ठीक है, बट नाउ वट एवर वी आर डूइंग इज ओनली फॉर गॉड। तो ये भाव की प्रगाढ़ता ही प्रेमा भक्ति है। मतलब इसमें जैसे कि भगवान का पूरे अंग का दर्शन करने लगता है भाव भक्ति में लास्ट में, किसी को नहीं दिख रहा करते है, करते फिर वो चीटिंग करनी भी नहीं आती किसी को। कंटिन्यू से मुझे बर्थ मिलता है लीला में मेरे, भगवान की थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। डायरेक्ट बर्थ मिलता है फिर अगली, मतलब जब हम दोबारा से बर्थ लेके जन्म होगा तो हमें उनकी लीला में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। सही है ऑलमोस्ट। देखो प्रेम और भाव में खाली डिफरेंस है प्रगाढ़ता का, कल भी बताया था, इसलिए उनको साध्य भक्ति के अंदर रख दिया गया। दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट वही है, जैसे पिछली बार देवर्षि जी ने प्रश्न पूछा था ना, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, प्रगाढ़ता है, बस दूध है, दूध को और थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा दूध समझो, वो दूध है, ये गाढ़ा दूध है, पर डिफरेंस है। इसलिए तो प्रेम और भाव को बताया गया, अलग अलग बताया, 3 विभाग बताए। तो पहले ये तो प्रेमी डायरेक्ट बता देते ना रूप गोस्वामी भी, क्यों 2 बोलने की जरूरत थी, भाव और प्रेम की जरूरत बोलनी थी। सबसे इंपॉर्टेंट उनमें डिफरेंस है, यहाँ पर अनर्थ प्राय खत्म हो चुके हैं, पूरे नहीं खत्म हुए हैं। कल भी हमने चार्ट देखा था ना, भाव भक्ति में कौन सा अनर्थ बचा हुआ था और कितना बचा हुआ था? अपराध युक्त अनर्थ कितना बचा हुआ था? 10%। पर प्रेम भक्ति में अनर्थ समाप्त हो चुका है पूर्णतः, उसमें कोई आभास भी नहीं अभी रहा है। आभास मतलब होता है ना, आभास समझते ना, बताया था एक बार, चूहा मर गया, चूहा तो फेंक दिया भर पर, बदबू अभी भी आ रही है ना वहां पर जहां पे मरा हुआ था। चूहा है क्या उधर? अभी फेंक दिया, सफाई भी कर दिया, पेट्रोल से वहां पे साफ भी कर दिया, फिर भी हल्की फुल्की बदबू क्यों आ रही है? क्योंकि अभी थोड़ा आभास वहां पर अभी भी है। तो वो आभास जो है, वो 10% आभास जो है भाव में है। अनर्थ वहां पर क्यों एग्जाम्पल दिया, हमने पहले डिस्कस भी किया था। भाव भक्ति की से भरत महाराज तक गिर गए, क्यों गिर गए? वो आभास था बचा हुआ। भरत महाराज का नाम सुना है ना? कौन है भरत महाराज? क्या हुआ था उनके साथ? क्या हुआ था उनके साथ रेवती दीदी, आपको पता है? हिरण को देखकर वो कौन सी अवस्था में थे? भाव क्यों गिरे? फिर क्यों हिरण, एक भाव अवस्था वाला व्यक्ति हिरण क्यों बना भाई? उसके प्रति आसक्ति हो गई, उसके हिरण के बच्चे के प्रति आसक्ति हो गई। आसक्ति तो हो भाव गई। अवस्था से भी अगर, क्योंकि अनर्थ 100% साफ नहीं हुए हैं, मगर वो तो गए, उनके पीछे चले गए, मगर उनको याद रहा ना दूसरे जन्म में कि क्या हुआ था, मैं क्यों गिर गया था, किस कारण से मैं, क्योंकि वो उस भाव तक पहुंच गए थे, पहुंच गए थे। तो मतलब वहां से फिर आगे बढ़ने का चांसेस है, पर गिर भी सकते हैं। महत अपराध से तो इवन कहा गया है भाव का विवाह भी हो जाता है। इट इज वेरी रेयर, बट हमने डिस्कस किया था पहले एक बार भी। मतलब कोई माधुर्य रस का भक्त साख्य में भी आके गिर सकता है या दास्य में भी आके गिर सकता है। इतना भी अपराध का फल, महत अपराध का फल है, जो कि ऑलमोस्ट वेरी रेयर वस्तु है, मगर ऐसा भी हो सकता है। प्रभु जी, अजामिल वाली कथा में भी जैसे वो पहले भक्त थे, फिर वो अपने उससे वैश्य उसमें आ गए, फिर पर लास्ट में नाम लेने पर उनको उसकी पूर्ति हुई, भगवान उसको कहाँ पे फिट लोक में करेंगे? पहुंच गए, सुकृति हुई उनकी। इन एग्जाम्पल्स में, इन टेक्निकल वर्ड्स में उसको कहाँ पर फिट होगा? भाव में, प्रेम में, साधना में, अनर्थ निवृत्ति में, संबंध में, साधना में वो को साधन किया नहीं। ठीक है, वो एग्जाम्पल अजामिल का तो है, नाम की शक्ति का उसमें प्रमाण है, नाम कितना शक्तिशाली है। अनर्थ से आदमी भाव अवस्था से भी वापस आ सकता है, इसलिए बताया गया भाव भक्ति और प्रेम भक्ति में अंतर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर 100% है, यहाँ पे 90% है भाई। ये 10% भी इतना डेंजरस हो सकता है कि आपको दोबारा जन्म लेना पड़ सकता है, इसलिए उसको भाव और प्रेम को एक नहीं बताया गया। और दूसरा,
संबंध ज्ञान तो दोनों में था ही, पूर्ण हो गया था, दोनों में संबंध ज्ञान है, क्योंकि स्वरूप शक्ति की अनादिवृत्ति प्रवेश कर चुकी है अंदर, क्योंकि आप पूर्ण रूप से अनर्थ खत्म हो चुके हैं। और यहाँ पर नाम लीला गुण का निरंतर सिमरन हो रहा है। अभी वहां पर तो कभी कभार स्फूर्ति हो रही थी, वहां पर तो आभास था, सूर्य की किरण जैसा था प्रथम स्टेज में, फिर कुछ कुछ अंग दिखने लग गए, जो अभी बताया किसी दीदी ने। तो फिर बाद में प्रेमा भक्ति की अवस्था में कैसा होगा, वहां निरंतर सिमरन है, निरंतर। निरंतर मतलब वो एक सेकंड के लिए भी हटेगा नहीं। और तीसरा जो अभी बताया क्या, कि वो भगवान जहां पर लीला कर रहे हैं वहां पर उसका जन्म होगा, किसी गोपी के घर में, किसी गोप के घर में, कोई सखा के रूप में, कोई सखी के रूप में, किसी बड़ी गोपी के रूप में वात्सल्य रस वाले भक्त का, भगवान की यशोदा मैया की कोई सखी के रूप में और भगवान के साथ वात्सल्य रस प्रदान करेगा। या अगर शांत रस में है तो कोई हो सकता, कोई पेड़ पौधा वहां पर बन जाए, शांत में भी वहां पर वात्सल्य का मिक्सचर है, मगर फिर भी शांत भी हो सकता है थोड़ा बहुत। या अगर कोई दास्य में भी है तो रक्तक पत्रक की तरह कोई सेवक बन जाएगा, उनकी अनुगति में भगवान ठाकुर जी का स्नान आदि, पादुका आदि लेके आना, उसको साफ करना, ये सब करेगा। तो he will take a birth actually in the place where Sri Krishna is performing pastime। अभी भी भगवान किसी न किसी ब्रह्मांड में अपनी लीला कर रहे होंगे ना, तो वहां पर वो जन्म लेगा। ये प्रेमा भक्ति का अवस्था है। तो इसलिए रूप गोस्वामी पाद ने बताया भाई इन दोनों में अंतर है, इसलिए भाव भक्ति प्रेमा भक्ति में अंतर है। पर अंतर खाली किस चीज का है, किस चीज का अंतर है, किस चीज का अंतर है बताओ। अनर्थ की उसमें पूर्ण मुक्ति होती है प्रेमा भक्ति में, और भाव में अभी रह जाती है 10%, थोड़ी सी रह जाती है। वेरी गुड। तीनों पॉइंट याद रखने हैं हमेशा, कल के लिए, परसों भी तरसों जब भी पूछूं, तीनों पॉइंट। साधन भक्ति साधना में सेंस के द्वारा हो रही है, संबंध ज्ञान नहीं है, अनर्थ बहुत सारे बड़े पड़े हैं, बड़े बड़े। भाव भक्ति में संबंध ज्ञान हो गया है, नाम रूप गुण लीला की स्फूर्ति हो रही है, बीच बीच में हो रहा है, बीच में नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा हो रहा है, पर बहुत बीच में छूट भी रहा है। अनर्थ 90% खत्म हो गए, पूरे नहीं हुए। प्रेमा भक्ति में अनर्थ 100% खत्म हो चुके हैं। नाम लीला का सिमरन निरंतर चलता रहता है, जैसे टीवी ऑन किया आपने, निरंतर मूवीज ड्रामा चलते रहेंगे, कुछ कोई रोक नहीं सकता। जब तक आप टीवी बंद नहीं करेंगे तब तक कोई उसको रोकेगा नहीं, टीवी चलता रहेगा 24 घंटे। उसी प्रकार नाम लीला गुण का सिमरन निरंतर चलता रहेगा, नाम करेगा तो करता ही रहेगा, छोड़ेगा ही। 24 घंटे नाम हो गया, 28 घंटे हो गए, 40 घंटे हो गए, नाम चल ही रहा है, बस चल ही रहा है, कोई रोक नहीं सकता उसको, चल रहा है। लीला का सिमरन हो रहा है, रूप गोस्वामी पाद या कोई भी नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य देख रहे हैं, 3 दिन से राधा कुंड में वो सेवा कर रहे हैं, राधा जी का नुपुर ढूंढ रहे हैं, कंटिन्यूअसली ढूंढ रहे, 3 दिन हो गए ढूंढ रहे, है कि नहीं। लीला सिमरन हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसी शरीर में हो रहा है कि नहीं हो रहा, निरंतर लीला सिमरन हो रहा, 2-3 दिन हो रहा है। पर फिर वापस भी आ सकते, टीवी बंद भी कर सकते हैं, वापस वो सांसारिक सेवाओं में आ सकते हैं। जैसे रूप गोस्वामी पाद लीला सिमरन के बाद फिर से वापस संसारिक में आकर के ग्रंथ आदि लिखते हैं, कथा आदि करते हैं फिर जाकर के, परंतु उनका निरंतर लीला सिमरन चलता रहेगा। और भगवान के किसी स्थान पर जहां लीला कर रहे होंगे, किसी ब्रह्मांड पर राधा गोविंद या महाप्रभु, वहां पर उसका जन्म होगा और उस लीला में वो खुद प्रवेश करेगा। अभी खाली सिमरन ही नहीं हो रहा, वहां पर जाकर उसकी एंट्री होगी, वो भी पार्टिसिपेट करेगा भगवान की उस लीला में। ये प्रेमा भक्ति का विशेष लक्षण है। इसलिए बताया गया ये दोनों जो भाव और प्रेम जो हो रहे हैं, ये आत्मा के द्वारा होते हैं, ये इंद्रियों के द्वारा नहीं हो रहे, क्योंकि भाव भक्ति के स्टेज में ही भगवान की स्वरूप शक्ति की अलादनी वृत्ति और संवित वृत्ति प्रवेश कर जाती है, तब स्वरूप शक्ति ही कार्य करा रही है। स्वरूप शक्ति के द्वारा ये सब चीजें हो रही है, ये सेंसेस के द्वारा नहीं हो रही है। वो आंखों के द्वारा नहीं देख रहा है कि क्या लीला चल रही है, वो इस केवल जीवा के द्वारा नाम जप नहीं कर रहा है। इसलिए कई बार आप देखेंगे, अब गुरुदेव के अगर आपने कोई कीर्तन देखा होगा या कोई लीला, कभी कोई ड्रामा एक बार चल रहा था कहीं फॉरेन में, लोग रामलीला या कृष्ण, गुरुदेव की आंखें बंद है, मुंह बंद है, कोई भी मूवमेंट नहीं है, मगर आंखों में से आंसू बह रहे हैं, बाहर से दिख रहे हैं आंसू बह रहे हैं। तो अंदर समस्त लीला सिमरन चल रहा है, आंखें बंद है खुली है पता नहीं क्यों, क्योंकि वो भाव अवस्था में उस लीला में एंटर प्रवेश कर चुके हैं उस समय, इसलिए निरंतर वो लीला चल रही है। प्रभुपाद जी ने एक बार अपने एक शिष्य को दिखाया, वृंदावन में कोई कार्य कर, प्रभुपाद जी ने बताया निरंतर नाम करना है। फिर प्रभुपाद जी कुछ कंस्ट्रक्शन काम करने की बात करने लग गए, और शिष्य बोले भाई प्रभुपाद आपने तो कहा निरंतर नाम करना है। प्रभुपाद बोले हाँ निरंतर नाम करना है, पर आप तो भी कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, बिल्डिंग कैसे, मटेरियल कहाँ से आएगा।
रिपीट पे कान लगाओ, अंदर निरंतर नाम चल रहा है। कौन अंदर? बाहर तो इंद्रियां बोल रही है कंस्ट्रक्शन काम करना है, मुंह से जीवा से बोल रहा है कंस्ट्रक्शन के लिए सामान लाओ, वो सामान लाओ, यहां से ये करना है, वहां पर ये करना है, पर नाम कौन कर रहा है अंदर? आवाज कहां से आ रही है? कहां से आ रही है आवाज? कहां से आ रही है आवाज शिवानी दीदी? वो आत्मा जो स्वरूप शक्ति की वृत्ति अंदर है ना, स्वरूप शक्ति जो आत्मा का जो स्वरूप है वो नाम जप कर रहा है। बात समझ आ रही कि नहीं मुकेश प्रभु जी? आत्मा का जो स्वरूप है, का जो ओरिजिनल स्वरूप है, वो नाम जप कर रहा है, उसकी साउंड वाइब्रेशन है वो शरीर के जीवा की साउंड वाइब्रेशन नहीं है, उन आंखों के द्वारा देखी जा लीला नहीं है, वो जो मन की जो आत्मा का जो आंखें हैं वो उनसे वो लीला स्मरण हो रहा है। ये आंखें अगर खुली भी हो या बंद भी हो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो आत्मा का स्वरूप प्रकाशित हो चुका है। आत्मा की आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, मन, बुद्धि, सब कुछ जो आत्मा का जो स्वरूप है, जो आत्मा का जो सिम्टम है, आत्मा का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो प्रकाशित हो गया, वो जागृत हो गया। वो एक अंदर समझो एक और स्वरूप सिद्ध व्यक्ति बैठा हुआ है, बाहर से कुछ भी कर रहा है, अंदर से कुछ और कर रहा है। तो इसलिए बताया गया प्रेम भक्ति की अवस्था में वो निरंतर भगवान की लीलाओं में प्रवेश पाता है और फाइनली वो उस लीला में एंटर करके वहां पर जो है उसमें पार्टिसिपेट भी करता है। फिर बताया साधन, भाव इज डिफरेंट टू साधन एंड प्रेम इज डिफरेंट टू भाव। बाय साधना साधि इज अचीव्ड, जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसको अलग अलग इसलिए भी किया क्योंकि जैसे पहले ही बताया, श्रेया बता रही थी कि भाई किस प्रकार से साधना के द्वारा साध्य की प्राप्ति होती है। पढ़ाई के द्वारा डिग्री मिलती है, फिर जॉब मिलती है, पर जॉब में हम अभी मैनेजर है, फिर सीनियर मैनेजर बन गए, इसका मतलब नहीं कि नया जॉब मिल गया, इसका मतलब उसी में आपको पोस्ट की वृद्धि होगी। आप सीनियर मैनेजर से प्रोग्राम मैनेजर बन गए या डायरेक्टर बन गए, मतलब आपकी वही प्रमोशन हो रही, काम वही चल रहा है, थोड़ा थोड़ा आपको बढ़ाया जा रहा है काम, सैलरी बढ़ रही, काम बढ़ रहा है, डिजिग्नेशन बढ़ रही है। तो भाव भक्ति से प्रेम भक्ति की स्टेज इसी प्रकार है, आप उसी डिपार्टमेंट में है, वहीं पर काम चल रहा है, वही सब हो रहा है, परंतु खाली डिजिग्नेशन चेंज हो गई, पर या थोड़ा सा आपका रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई है। इसीलिए भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति को एक साथ कर दिया गया, अंडर वन अम्ब्रेला, इन वन डिपार्टमेंट यू आर वर्किंग एंड डूइंग योर सेवा। बट साधना इज अ डिफरेंट वर्ल्ड इन इटसेल्फ। वहां पर सेंसेस काम कर रही है, वहां पर अनर्थ भी है, वहां पर संबंध ही नहीं है, वो सेंसेस के द्वारा हो रही है, इसलिए उसको अलग बता दिया गया। और भाव और प्रेम को अलग बता दिया गया, इसलिए उसको साधन भक्ति में बता दिया गया और इसको साध्य भक्ति के अंदर कैटेगराइज कर दिया गया। वेरी क्लियर, टुमारो नोबडी शुड हैव एनी कंफ्यूजन ऑन दिस। फिर बताया गया साधन भक्ति को फिर भक्ति क्यों बोला गया। फिर प्रश्न आता है, अगर साधन भक्ति के द्वारा साध्य प्रकाशित होता है, साधना के द्वारा हम साध्य प्राप्त करते हैं, पढ़ाई के द्वारा हम डिग्री प्राप्त करेंगे, तो फिर पढ़ाई को डिग्री क्यों कहा गया? देन व्हाई इट इज कॉल्ड साधन भक्ति? इसको साधन भक्ति क्यों बोला, इसको साधन क्यों नहीं बोल दिया गया? तो यहां पर बताया गया भक्ति जो वृत्ति है वो आत्मा की है, वो इंद्रियों की नहीं है। हमने भी डिस्कस किया ना, भक्ति आत्मा के द्वारा होती है, इंद्रियों के द्वारा नहीं होती है। इंद्रियों के द्वारा केवल कर्म होता है, केवल एक्टिविटीज होती है, केवल कृत्य होते हैं, इसलिए बताया गया कृति साध्य भवेद साधन। जो एक्टिविटीज हो रही है वो सेंसेस के द्वारा हो रही है। बात समझ आ रही है? टफ हो रहा है? समझ आ रहा है? दीक्षा को नहीं समझ आ रहा? और नहीं प्रभु जी, नहीं आ रहा। आपको भी नहीं आ रहा? किसको नहीं आया? अच्छा, कहां तक समझ आया है? पीछे का समझ आया? ऊपर का स्लाइड, प्रेमा भक्ति, साधन भक्ति, भाव भक्ति क्लियर है कि नहीं है? यस, नो, मे बी। हाँ जी प्रभु जी, ये तो ओके, ठीक, ये क्लियर हो गया, ठीक, कोई चिंता नहीं। साधन भक्ति, प्रेमा भक्ति, भाव भक्ति क्लियर हो गई, साध्य वस्तु और साधन वस्तु क्लियर हो गई। फिर बताया गया डेफिनेशन भक्ति की, कृति साध्य भवेद साध्या भवेद साधना विदा। अरे बाबा, जो हम इंद्रियों के द्वारा एक्टिविटीज करते हैं उसको साधना बोलते हैं। वो साधना का लक्ष्य भाव भक्ति होना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता, भगवान का प्रेम भाव होना चाहिए, उसको बोलेंगे साधन भक्ति। फिर बताया गया नित्य सिद्ध से भाव से प्राकृतम हृदय सद्यते। ये नित्य सिद्ध भाव है, ये कहीं बाहर से नहीं आएगा, साधन भक्ति करने से प्रकट हो जाएगा। ठीक है, साधन भक्ति करने से प्रकट होगा। फिर यहाँ पे बता रहे हैं भाई, अगर साधन भक्ति से भाव भक्ति मिलती है, साधन भक्ति से भाव या प्रेम भक्ति या भाव भक्ति की प्राप्ति होती है, तो साधन भक्ति नहीं हुई ना, फिर
वो तो खाली एक प्रोसेस है। साधन तो केवल एक प्रोसेस हुआ, फिर वो भक्ति कैसे हुई, ये प्रश्न उठाते हैं जीव गोस्वामी पाद यहाँ पर। अगर साधन एक प्रोसेस है और साधन के द्वारा साध्य की प्राप्ति होती है, तो फिर प्रोसेस को कैसे हम गोल मान सकते हैं? उसके जवाब में बताते हैं ये साधन प्रोसेस है, परंतु इससे हम ये एग्जाम्पल फिट नहीं होगी कि भाई पढ़ाई से जॉब की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये नित्य साध्य भाव जो है वो बाहर से नहीं आएगा, ये केवल प्रकाशित करेगा उस चीज को, केवल उस चीज को प्रकाशित करेगा। कैसे प्रकाशित करेगा? एग्जाम्पल दिया गया, अगर साधन भक्ति तो एक्चुअली भक्ति नहीं है, माना उसमें तो इंद्रियां काम कर रही है, अनर्थ भी है, संबंध भी भगवान से नहीं, जब संबंध नहीं तो भक्ति हो ही नहीं सकती। भक्ति मतलब लौकिक संबंधत्व। फर्स्ट डेफिनेशन, भक्ति का अर्थ है लौकिक संबंध। अब संबंध ही नहीं है तो भक्ति कैसे हुई? भक्ति तो हुई नहीं, तो साधन भक्ति तो भक्ति है नहीं एक जगह देखी जाए तो। परंतु फिर उसको भक्ति क्यों बोला गया? साधन भक्ति शब्द क्यों प्रयोग किया गया? बोलते हैं इसलिए प्रयोग किया गया क्योंकि वो जो एक्टिविटीज उसमें हो रही है वो भक्ति को केंद्रित करके हो रही है, इसलिए उसको भी भक्ति बताया गया। फिर एग्जाम्पल देते हैं, प्रभु जी अगर कोई यज्ञ करना चाहता है, यज्ञ के लिए हम सामग्री लेके आ रहे हैं, यज्ञ के लिए घी को तैयार कर रहे हैं, सामग्री मिला रहे हैं और फिर उसमें हम यज्ञ में आहुति डाल रहे हैं। क्या खाली यज्ञ में घी डालने को ही यज्ञ कहेंगे? जो हमने सामग्री इकट्ठा किया, वहां पर जो हवन कुंड बनाया, वो यज्ञ नहीं है? तो यहाँ पे समझा रहे हैं ये सारी एक्टिविटीज यज्ञ के अंतर्गत ही कहलाएंगी। चाहे आप हवन सामग्री को तैयार कर रहे हैं, घी को गर्म कर रहे हैं उसमें डालने के लिए, वहां पे आसन लगा रहे हैं, वहां पे कुंड बना रहे हैं, वहां पर अग्नि के लिए लकड़ियां ला रहे हैं, लकड़ी को आप हवन कुंड में डाल रहे हैं, उसमें कर्पूर डाल रहे हैं, उसमें सब चीजें तैयार कर रहे हैं, आप उसको जलाना है और जलाने के बाद फिर मंत्रों के द्वारा स्वाहा होगा। केवल मंत्र बोलने से ही यज्ञ नहीं होगा, मंत्र बोलने से खाली यज्ञ नहीं होगा, वो हवन कुंड भी चाहिए, वो लकड़ी भी चाहिए, वो घी भी चाहिए, वो सामग्री इकट्ठी भी करनी पड़ेगी, वो लेके भी आनी पड़ेगी, खरीदनी भी पड़ेगी। ये सारी विधि प्रक्रिया को ही यज्ञ कहा जाएगा। इसीलिए ऑल्दो साधन भक्ति इज नॉट रियल भक्ति और द भक्ति फ्रॉम द आत्मा, इट इज थ्रू सेंसेस, बट इसको फिर भी भक्ति कहा जाता है क्योंकि ये लक्ष्य केंद्रित करती है भाव भक्ति को, क्योंकि इसका लक्ष्य, इसका गोल भाव भक्ति है, इसका गोल भगवान का प्रेम प्राप्त करना, इसलिए भक्ति कहलाएगी। अगर इसका लक्ष्य भगवान का प्रेम प्राप्त करना नहीं है, अगर इसका लक्ष्य भाव भक्ति नहीं है, तो फिर ये साधन भक्ति नहीं कहलाएगी। फिर क्या कहलाएगी? ये फिर क्या कहलाएगी अनुराधा दीदी? साधारण भक्ति। साधारण भक्ति। मुकेश प्रभु तो बहुत बुद्धिमान हो गए, क्या बात है, कहाँ पढ़ रहे हैं आप? ये साधारण भक्ति कहलाएगी, वो साधन भक्ति नहीं कहलाएगी। पहले पीछे डिफाइन किया ना साधारण भक्ति। अगर इसका गोल भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तो फिर साधारण भक्ति हो गई, जो हम संसार के भोगों को प्राप्त करने के लिए या कुछ लोग नाम के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मुक्ति के लिए, भोग के लिए, इसके लिए कर रहे हैं, फिर साधारण भक्ति कहलाएगी। साधन भक्ति नहीं कहलाएगी। फिर साधन भक्ति तभी कहलाएगी बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ साधन भक्ति इज कृति साध्य भवेत साध्य, एक्टिविटीज शुड बी टुवर्ड्स भाव, कृति साध्य भवेत भाव साध्य। अगर भाव का साध्य, अगर लक्ष्य भाव है तभी वो साधन भक्ति कहलाती है। अगर भाव साध्य नहीं है तो फिर ये साधन भक्ति नहीं कहलाएगी। इसलिए अगर हम बहुत सारे मंदिरों में जाकर के घंटियां बजाते रहे, मंगल आरती में नाचते रहे, कूदते रहे, बोले यार साधन भक्ति हो रही है, साधन भक्ति नहीं हो रही भाई। अगर ये नहीं समझेंगे तो हम जीवन भर समझे हमने तो बहुत मेहनत किया, दिन रात मंदिर गए, दिन रात नाम किया, दिन रात वहां पर सेवा की, कुछ रिजल्ट ही नहीं। रिजल्ट कहां से आएगा? तुमने साधन भक्ति किया ही नहीं, तुम तो साधारण भक्ति कर रहा था जीवन भर। तो इसलिए हम इस पे इतना जोर दे रहे हैं। भाई हमको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमको डिग्री नहीं चाहिए। हाँ डिग्री चाहिए तो जिसको दे देंगे, बट जिनको डिग्री नहीं चाहिए उनको भी समझना जरूरी है, नहीं तो फिर जिंदगी भर साधारण भक्ति ही करते जाएंगे, क्योंकि केंद्र ही भाव नहीं रहेगा तो फिर कैसे होगा भाई? बात समझ में आ गई कि अभी की नहीं आई? दीक्षा को तो आ गई, और किसको नहीं आई थी? श्रेया को आ गई? श्रेया भाग गई, हिमानी दीदी को आ गई। हाँ प्रभु जी। इसलिए साधन क्रिया, भजन क्रिया, साधन क्रिया में भजन जो होता है मन एकाग्रचित नहीं होता है। साधन क्रिया में, साधन भक्ति में नहीं, साधन क्रिया में जो पहले हम प्रारंभ करते हैं, जब भजन जो अनर्थ, इसलिए बताया गया ना भजन क्रिया। गुरु पदाश्रय के बाद क्या बताया नेक्स्ट स्टेप? आदो श्रद्धा तथा साधु संग। फिर थर्ड स्टेप क्या था? थर्ड स्टेप क्या था?
भजन क्रिया प्रभु जी। भजन क्रिया। चौथा स्टेप अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति। पांचवा स्टेप निष्ठा। निष्ठा। फिर रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो साधन क्रिया के अवश्य, साधन क्रिया बोलो या भजन क्रिया बोलो एक ही शब्द है। अभी यूं ही आपका गुरु पदाश्रय, आपने नाम जब प्रारंभ किया, मंदिर जाना प्रारंभ किया, साधन क्रिया प्रारंभ हो गया। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, साधन क्रिया प्रारंभ हुई। पर क्या साधन क्रिया में ही हमेशा रहना है? हाँ? या साधन भक्ति में भी आने की इच्छा है? या भाव भक्ति में आने की इच्छा है कि नहीं इच्छा है? किसी को इच्छा है? किस किस को इच्छा है वो हाथ खड़ा करेंगे। शिवानी जी को खाली इच्छा है, बाकी लोग तो सो गए। हाँ, दीक्षा का हाथ खड़ा है, सबकी इच्छा है। क्योंकि गुरुदेव वर्णन करते थे, प्रभुपाद जी भी लिख बोले हैं, प्रभुपाद जी के शब्द है, हमको हमेशा कनिष्ठ नहीं रहना है। वी आर नॉट हियर टू बी ऑलवेज स्टे कनिष्ठा। हम केवल कनिष्ठ बनने के लिए नहीं आए, हमको कनिष्ठ से मध्यम, मध्यम से उत्तम बनना है। कनिष्ठ नहीं रहना है हमेशा जिंदगी भर, हमेशा साधन क्रिया ही करते रहे, नहीं। तो भाव में पहुंचो। बताया गया साधन क्रिया में, भजन क्रिया में माइंड इतना फ्लिकरिंग रहता है, वहां पर एकाग्रचित्त नहीं होता है, अनर्थ बहुत सारे पड़े होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह आदमी को इतना जला रहा होता है। जब काम क्रोध लोभ मोह जला रहा है, मैं डिस्कनेक्ट हो गया लगता है। आवाज आ रही है? अच्छा ठीक, अगर 1 घंटे वाली 1 घंटा हुआ क्या? हाँ, हो ही गया। ठीक है, साधन भजन क्रिया में अगर डिस्टर्बेंस है, हमारे मन अगर एकाग्रचित नहीं हो रहा, निरंतर नाम नहीं हो रहा है, अगर ये सब चीजें, आवाज आ रही है अभी भी? आ रही है प्रभु जी, आ रही है। स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन नहीं दिख रहा ना प्रभु जी? दिख रहे हैं। अच्छा, दिख रहा है, वेरी गुड। मुझे क्यों नहीं दिख रहा? ठीक। तो साधन क्रिया में, साधन क्रिया में क्योंकि मन अभी भी पाप कर्मों से बचने के लिए ही प्रयास कर रहा है, क्योंकि मन अभी भी जो है अनर्थों को निवृत्ति का फोकस में लगा हुआ है, उसका गोल ही अनर्थ निवृत्ति है, तो उसके अंदर जो है भाव में प्रवेश नहीं पाएगा। साधन भक्ति प्रारंभ होती है कहां से? निष्ठा से। क्योंकि यहां पर अनर्थ कट गए हैं पूरे। अनर्थ कटने के बाद आदो सदा साधो भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति के बाद जो निष्ठा की स्टेज है, वहां से साधन भक्ति प्रारंभ होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर भजन में निरंतरता रहती है। वहां पर जो जीव है वह विचलित नहीं होता है, वो गृहस्थ में रहे, वानप्रस्थ में रहे, ब्रह्मचार्य आश्रम में रहे, घर में रहे, माता पिता की सेवा कर रहा है, या मठ में रह करके गुरु वैष्णव की सेवा कर रहा है। दीज आर ऑल एक्सटर्नल थिंग्स थ्रू बॉडी। इसलिए बताते हैं ना रामानंद राय संवाद में, महाप्रभु जब पूछते हैं वर्णाश्रम सर्वसाध्य सार ये हो बाह्य। वर्णाश्रम बाह्य, यस, सर्वधर्मानि परित्यज्य यो हो बाह्य। तो शरीर के साथ ट्राई टू रिकॉन्साइल द थिंग्स जो हमने सीखा इतने सालों से। क्यों बाह्य बता रहे हैं? उसका क्या कोर रीजन है, यहां से पता लग रहा है इन चीजों के बारे में और डीप हम जब समझते हैं इन चीज को। क्यों बाह्य है? अरे ये तो आत्मा की वृत्ति है भक्ति, तो शरीर की वृत्ति है ही नहीं। तो मैं गृहस्थी हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, कहां से आ गया? यहाँ पर स्त्रियां बहुत, अरे हु इज स्त्री हियर, हु इज पुरुष हियर? देयर इज ओनली वन पुरुष, श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन। तो ये बुद्धि तो अभी हमारी इतनी डेवलप ही नहीं हुई, हम तो स्त्री स्त्री शरीर देख रहे हैं, पुरुष पुरुष शरीर देख रहे हैं, बड़ा शरीर, बूढ़ा शरीर, जवान शरीर, ये देख रहे हैं। अपनी कॉन्शियसनेस को थोड़ा तो एलिवेट करें हम इन विचारों के द्वारा, कम से कम थोड़े समय के लिए ही सही। बार बार उन विचारों, अरे ये शरीर नहीं है बाबा, ये सब आत्मा है। अरे आत्मा की वृत्ति है भक्ति, ये सेंसेस की वृत्ति नहीं है, ये इंद्रियों के द्वारा नहीं होगी। इंद्रियों के द्वारा तो भजन क्रिया हो रही है, साधन क्रिया हो रही है, साधना कहाँ हो रही है? साधना तो आत्मा का विषय है। आत्मनिवेदन तू अपद करी होई नु परम सुखी, आत्मनिवेदन करना पड़ेगा। अगर मेरी इच्छा ही नहीं अभी तक है, मैं भगवान आपकी लीला स्मरण चाहता हूं, मुझे अपनी लीला में स्मरण करा दो, बस मुझे चाहिए लीला स्मरण आपका। अच्छा हूं या बुरा हूं पर दास हूं तुम्हारा। दुर्घट घटन विधात्री, आपके पास एक शक्ति जिसका नाम है दुर्घट घटन विधात्री। सुबह पढ़ते हैं ना, कृष्ण देव भवंतम वंदे,
मन मानस मधुकर अर्पय निज पद पंकज मकरंदे। मेरे मन को अपने चरण रूपी मकरंद में लगाओ। आपके पास दुर्घट घटन विदादी अपट क्या अगट घटन पटसी शक्ति आपके पास है, जो नहीं हो सकता वो आप कर सकते हो। उस शक्ति का प्रयोग करके मुझे अपनी लीला स्मरण करा दो ठाकुर जी। आई वॉन्ट दैट प्लीज। मेरे पास तो कोई शक्ति समर्थ कुछ नहीं, पर आप कृपा करके ये सब करा दीजिए। प्रार्थना करते रोए। हाँ, तो उसी को बोलेंगे फिर भाव भक्ति में साधन भक्ति प्रारंभ हुई। जब तक ऐसा विचार ही मन में नहीं आया तो कैसे करेगा वो? तब तक तो केवल अनर्थ निवृत्ति करेगा, साधन क्रिया ही करता रहेगा। पर करना है, ऐसा नहीं कि मैं वो करना नहीं है, वो तो करना ही पड़ेगा। जब तक नेचुरली ये भाव नहीं, ये मूड नहीं आएगा, ये विचार नहीं आएगा मन में, या सुनने के बाद कम से कम। हाउ मेनी ऑफ अस विल फॉलो इट? नहीं फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि वो वृत्ति नहीं आई अभी तक। वो अनर्थ निवृत्ति हुई नहीं तो कैसे आया विचार आएगा? जैसे प्रभु जी बताते हैं, अगर कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, बहुत बीमारी में उसको बोलेंगे आप गाना गाओ, बढ़िया से नाचो, वो नाच पाएगा? बेचारा परेशान है, वो कैसे गाएगा? हाउ कैन ही सिंग अ सॉन्ग और हाउ कैन ही डांस? तो उसी प्रकार से कैसे हृदय में ऐसी भावना आएगी कि भगवान मुझे अपना लीला स्मृति कराओ। अभी तो अनर्थों से ही बेचारा ग्रस्त है वो, अभी काम से ही उसकी बुद्धि बार बार ग्रस्त हो जाती है। मोह इतना है संसार के वस्तुओं के प्रति, लोभ इतना है। अब इसी चक्कर में वो कट रहा है, तो कैसे वो भगवान की प्रीति या भगवान के साथ संबंध स्थापित करके ऐसी प्रार्थना करेगा? मगर अगर ऐसी प्रार्थना की वृत्ति हृदय में आती है, ऐसा विचार हृदय में आता है, जैसे एक बार श्रीनिवास प्रभु वृंदावन से फोन करके जोर जोर से ऑलमोस्ट रो रहे थे कि भाई ऐसा क्यों नहीं हो रहा। देन आई रियलाइज यस, समबॉडी इज रियली गेटिंग इट, इज नॉट ओनली इन द बुक्स। मेरे लिए नहीं है, मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, पर कम से कम किसी के अंदर तो ऐसी वृत्ति आ रही है ना। दिस इज प्रैक्टिकल, दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट जस्ट इन द बुक्स। तो समबॉडी इज रियली फीलिंग एंड क्राइंग फॉर दैट। मुझे दर्शन चाहिए, मुझे स्मृति चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया द्वितीय श्लोक में और तृतीय श्लोक में भी, कल हम इन श्लोकों को थोड़ा सा पढ़ेंगे, ऑल्दो आई हैव कवर्ड मेनी श्लोकास हियर। सबक्ति सप्तमा तदानंद भगवान Uttama Bhakti of sadhan type, Sahij Narada has limited at an indirect and roundabout way in the 7th canto. साधन भक्ति के बाद नारद मुनि ने सप्तम अध्याय में क्या बताया, तृतीय स्कंद में क्या बताया, हम कल 2-4 श्लोक पढ़ेंगे और यहाँ से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि साधन भक्ति की डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसलिए थोड़ा सा हमने समय इस पर ज़्यादा दिया, बाकी वी विल ट्राई टू गो little fast. Any questions are welcome. Although I had said yesterday also I will take questions, but the time नहीं मिला. We will take one question today, remaining tomorrow, and tomorrow थोड़ा जल्दी खत्म करने का प्रयास करेंगे। कल ऑलमोस्ट ज़्यादा लोगों को छुट्टी होगी, बेंगलोर में भी, जम्मू में भी इलेक्शन की वजह से, तो वोट डाल करके जल्दी आ जाइए। थोड़ा आप 10-15 मिनट जल्दी शुरू करेंगे। अच्छा आदमी को वोट दीजिए, आपको पता अच्छा आदमी कौन है, धर्म का रक्षक कौन है। तो प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रतिभा दीदी, और आप कुछ बोलना चाहते हैं, या कोई प्रश्न है, या कुछ ऐड करना चाहते हैं, या ऐसे ही पहले का हाथ खड़ा हुआ है, पहले का हुआ होगा? ओके, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, मुझे आ रही है। प्रभु जी, क्वेश्चन है। प्रभु जी, जैसे साधन भक्ति में मतलब हमने देखा कि साधन भक्ति का जो वन ऑफ द सिम्टम्स था कि वहाँ पे संबंध नहीं होता है और अनर्थ भी होते हैं, लेकिन मतलब साधन भक्ति, साधन साधन भक्ति दो चीजें बताई थी। साधन क्रिया में नहीं है, साधन भक्ति में निष्ठा से शुरू होती है। साधन भक्ति निष्ठा से, हमने पहले भी देखा था ना, निष्ठा से रुचि में प्रवेश कर अनिष्ठा भक्ति खत्म हो गई, अनर्थ खत्म हो गए, अब निष्ठा में आ गया। यहां से साधन शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से निरंतरा भजन में आ गई और संबंध होने लगा है। अब पूछिए, अगर मैं जो इंटरप्ट किया था वो रिलेटेड नहीं था तो। नहीं प्रभु जी, वही रिलेटेड था। मतलब वो मुझे गलती से लगा कि स्लाइड में वो साधन भक्ति का नो संबंध वाला वो लिखा था, तो मैं वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। मुझे लगा क्योंकि अभी क्लियर है प्रभु जी कि वो निष्ठा के स्तर से वो साधन भक्ति है। वहां पर भी एक छोटा सा क्वेश्चन है प्रभु जी, जैसे हमने माधुर्य कादम्बिनी में जब हम पढ़ रहे थे तो
में डिफरेंस भी कितना है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन भाव एंड प्रेम। जबकि वहां पर बताया गया ये किरण है, वो सूर्य है, वो किरण है, वो पूरा प्रकाश है। ओनली क्वांटिटेटिव difference is there, qualitative it is same, but now here it is even defined qualitative भी difference, क्योंकि यहाँ पे गिर भी सकता है वापस भाव की स्टेज से। हाँ, प्रेम इसमें नहीं गिरेगा। वहां पर लीला सिमरन भी है, निरंतरता भी है, और लीला में प्रवेश भी है। तो we will try to get even more details when we go into the subject which is more related to that particular, जैसे दीप्तोषी दीदी ने PhD किया तो उस सब्जेक्ट में और फिर डिटेल में वो घुस गए। ठीक है, does it answer your question? थैंक यू जी प्रभु जी, थैंक यू। ओके, और कोई प्रश्न किसी का? प्रभु जी, हाँ मीराबाई, हाँ मीराबाई, नरसिंह मेहता, इन सब की प्रेमा भक्ति थी या इन सब की प्रेमा भक्ति है, इन सब की प्रेमा भक्ति है, मगर अच्छा प्रभु जी, प्रेमा भक्ति में अनुकूलता और प्रतिकूलता भी आती है, उनमें नहीं होती? में भी अनुकूल ही होता है, पर प्रेमा भक्ति भी अलग अलग लेवल की है। प्रेमा भक्ति द्वारिका में भी है, प्रेमा भक्ति अयोध्या में भी है, प्रेमा भक्ति वृंदावन में भी है। अब मीराबाई की प्रेमा भक्ति जो है द्वारिका की है, हमने पहले डिस्कस किया था ना। क्यों द्वारिका की है? क्योंकि वो द्वारिका की रानी बनी अंत में। और क्यों द्वारिका की रानी बनी? ऑल्दो वृंदावन में रही और बोलती मेरे तो गिरिधर गोपाल, पर वो द्वारिका की रानी क्यों बनी? क्योंकि उन्होंने गोपियों के अनुगत्य में भक्ति नहीं की। गोपियों के अनुगत्य में भक्ति न करने के कारण वो डायरेक्ट भगवान से संबंध बनाना चाहती है, इसलिए वो द्वारिका की रानी बन गई। तो ये पर दोनों है वो भी प्रेमा भक्ति, मगर वो प्रेमा भक्ति जो है द्वारिका की है। अच्छा, वो जो मुक्ताबाई थी, जो बिट्ठल बिट्ठल उनके उपलों में से भी आवाज आती थी, वो भी प्रेमा भक्ति? वो भी प्रेम, वैकुंठ में भी प्रेम है, वैकुंठ में भी प्रेम है। विठल भी वैकुंठ के नारायण एक ही है, वो भी प्रेम है, परंतु ये वैदी का प्रेम है। अभी हम सुनेंगे ना, अभी टुडे टॉपिक था वैदी भक्ति और रागानुगा भक्ति में क्या अंतर है। वैदी भक्ति का प्रेम जो है वैकुंठ तक लेके जा सकता है, रागानुगा भक्ति का प्रेम जो है हमको अयोध्या, द्वारिका, गोलोक वृंदावन धाम लेके जा सकता है। मुक्ताबाई, विठल देव की भक्ति करने वाले, लक्ष्मी नारायण की भक्ति करने वाले, वैदी भक्ति वाले वहां तक जा सकते हैं। ठीक है ना? हाँ जी। और भी प्रेम, विदाउट प्रेम नोबडी कैन एंटर। सो देयर इज लव फॉर श्योर विद नारायण, मगर वो थोड़ा अलग प्रकार का प्रेम है, उसमें ऐश्वर्य की प्रधानता है। तो प्रेम पर प्रधानता उसमें ऐश्वर्य की है। ठीक है, ठीक है। और कोई प्रश्न? ठीक है, फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप सब भक्तों का। कल जरूर वोट डालिए, वोट जरूरी है देश के लिए, और देश में राम राज्य स्थापित करने के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी जिसको जहां पर भी है। और फिर शाम को मिलेंगे थोड़ा, मे बी अराउंड 8 और इवन अराउंड सेम टाइम, क्योंकि महाराज जी रामायण भी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है वो भी, काकभूषण जी का संवाद सुनने में। तो somehow other I don't want to miss that, but still we will try to close early and join here early। तब तक ले सचिनंदन गौर हरि की जय, राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नित्याई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। दंडवत प्रणाम राधा दीदी, बेटा दीदी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, कृष्ण प्रभु, सुरेंद्र प्रभु जी दंडवत प्रणाम, चंद्रकांता दीदी दंडवत प्रणाम, सबको हरि हरि बोल। श्री राधे, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत, श्री राधे, श्री राधे, दंडवत, दंडवत to one and all, take care, see you tomorrow, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत, श्री